ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ. Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel of Sachkhand Nanak Dham UK. ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਤੋਂ. ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ. ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉसी ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1990 ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦਾਸ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਸੰਧਿਆ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ शांत हो गई। मैंने कहा ठीक है पापा, आप जो पापा ने ही ढूंढा था, तो जैसे भी आपको ठीक लगेगा आप वैसे करो। फिर पापा ने मेरा हाथ इनको थमाया, इन्होंने मेरा हाथ महाराज जी को थमाया, जिससे कि मैं महाराज जी की होके रह गई। आज मेरे को 31 साल हो गए हैं, मैं महाराज जी का दरबार मैंने छोड़ा नहीं है। और इतनी रहमतें मिली हैं मैं बता नहीं सकती। कुछ तो आपको बयान कर ही दिया था मेरे हस्बैंड ने जी। उसके अलावा मेरे पास इतनी बेअंत, मतलब मेरे को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं सच बताऊं, मेरे को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उस प्रभु के पास जाती थी, बस मैं नमस्कार करती थी, प्रभु आपकी नौकरी करनी है, आपकी हाजिरी भरनी है, आपके दरबार की, आपकी तो बस हाजिरी भरनी है मुझे। और तो अभी तो रिसेंटली मैं जुलाई में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी कि एकदम से ना मैं गिर पड़ती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टरों को, स्पाइन वाले को भी दिखा लिया, हड्डियों वालों को भी दिखा दिया, घुटने वालों को भी दिखा दिया, किसी को भी कोई पता ही नहीं चला कि क्या है। फिर मैं हार कर, महाराज जी जब वहाँ इंग्लैंड से आए थे अगस्त में, 3 अगस्त या 8 अगस्त की बात है शायद, तो मैं महाराज जी से मिलने गई, तो महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं उसके बाद मतलब फिर किसी और डॉक्टर के पास गए, उसको समझ आ गई मेरी बीमारी की क्या कहानी थी, तो उसके बाद मैं ठीक होती चली गई। फिर मैं दिसंबर में भंडारे पे भी गई हूँ, समागम पे भी गई हूँ, समागम पे भी गई हूँ। वहां पे मैंने जितनी मेरे से सेवा हो सकती थी मैंने की। बस मैं उनका आशीर्वाद, मैं कहती हूँ बिन मांगे मुझे आशीर्वाद मिलता है, मैं बयान नहीं कर सकती। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ,
हाँ ਤੇ जी, हाँ ਉਸ जी। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਸ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂसेस ਦੇ ਬਾਰੇ। मेरे तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बताती बताती थक जाऊंगी, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं खत्म होंगे, इतने एक्सपीरियंस हैं हमारे। आप मानोगे, आप इतनी एक घटना कह सकते हैं या दुर्घटना कह सकते हैं, जो भी है। मेरी बेटी फोल्डिंग पलंग पे सोई हुई थी और ऊपर पंखा चल रहा था, पंखा एकदम से गिर गया और उसको कैसे पता लगा, छोटी बच्ची थी, 6 में पढ़ती थी मेरी बेटी, जी 6 में पढ़ती थी, लेकिन उसको कैसे पता लगा, कैसे नहीं पता लगा, बड़े आराम से उठ के ना वो सामने फोल्डिंग से उठ के सोफे पे बैठ गई। तो फिर मेरे पास आई, मेरे कमरे में, वो दादी के कमरे में सोई हुई थी, तो मेरे पास आई मेरे कमरे में, मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने कहा हाँ जी बेटा क्या हुआ? कह रही पंखा गिर गया। मैं तो सुन के हैरान हो गई, पंखा गिर गया मतलब इतनी हैवी पंखा होता है, आपको पता ही है, और जी चलते चलते गर्म भी हो जाता है। मतलब महाराज जी ने ही उनको बचाया। कैसे बचाया मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग उस टाइम तो सो रहे थे। कैसे मतलब उसको महाराज जी की कृपा हमें ऐसे मिली कि बस मैं सुन के एकदम से शॉक्ड हो गई। और ये कि पंखा का मतलब अगर उसके ऊपर गिरता, आप ये सोच सकते हो कि उसके ऊपर गिरता हाँ तो जी क्या होता। मतलब ये कहानी। उसके बाद तो बस मैं कह रही हूँ, इतना बच्चों का तो विश्वास पहले भी था, रात को जरूर रजोई करके सोते थे, तो अब तो वो डबल याद करने लग गए थे महाराज जी को। मतलब अर्जोई भी करते, फिर महाराज जी का सिमरन भी करते, वो हाँ जी शब्द भी मेरी बेटी गाती है गद्दी पे। तो काफी फर्क है उस चीज से। मतलब कि मेरे को इतनी खुशी होती है कि मेरे दोनों बच्चे महाराज जी की शरण में लगे हुए हैं। बिल्कुल और एक और एक्सपीरियंस ऐसा है कि उसमें भी मेरे महाराज जी ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि मैं ना बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजना चाह रही थी। दूध वगैरह गर्म करके ना, जैसे किचन के सामने ही डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे उनको बिठाया हुआ था मैंने कहा दूध पियो जब तक मैं तुम्हारे भाई पुलाव बना रही थी। मैं जी पुलाव बनाते बनाते वो कुकर ने पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, कुकर उड़ गया। मतलब और फिर 2 मिनट पहले ही मैं बच्चों को उठा के मैं ड्राइंग रूम में ले गई। मैंने कहा आप ड्राइंग रूम में बैठो, यहाँ मत बैठो। अब बस महाराज जी की कृपा ही कहेंगे इसको भी। तो वो एकदम से उड़ के और वहीं पर ही जाके गिरा, और चावलों की जैसे वर्षा हो जाती है वैसे गर्मा गर्म। अगर बच्चे उस टाइम बैठे होते हैं तो आप बता सकते हो, सोच सकते हो कि वो क्या क्या हिसाब। ये बस मतलब कहते हैं ना वो महाराज जी से तो हम जुड़े ही हुए थे। हाँ हमें जी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं कि हम महाराज जी से जुड़े थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे, भाई जाते थे वो उस दरबार पे, तो मुझे भी लेके जाते थे। फिर बच्चे भी वहीं भाई बड़े पले बड़े पैदा भी हुए, वो भी हुआ। तो बच्चों का भी इतना मतलब बहुत ज्यादा मतलब महाराज जी से लगाव था। कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मम्मी कभी पिक्चर दिखाने भी ले चलो, कभी नहीं बोला उन्होंने। हमेशा यही, मम्मी दरबार कब जाएंगे, मम्मी दरबार कब जाएंगे, दोनों बच्चे मेरे। मतलब बस ये सोच के ना बड़ा ही मतलब मैं क्या बताऊं मैं बता नहीं सकती। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ हाँ, ਕੋਈ। इसमें मान सकते कोई। हाँ, और अभी तो मैं बता तो कह तो रही हूँ, पता नहीं कितने हादसे हुए हमारे साथ, लेकिन हमें बस महाराज जी ने टच तक भी नहीं होने दिया, हमारी बॉडी से टच भी नहीं होने दिया। महाराज जी ने इतने एक्सपीरियंस है। एक बार की बात है, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, बिल्कुल नया सूट था मेरा। हाँ जी हम लोगों ने शाम में फंक्शन पे जाना था किसी जगह पे। तो वो क्या हुआ, उसमें प्रेस पे इतनी सारी चिंगारियां उड़ी, सारा सूट जल गया मेरा। और वही चिंगारियां मेरे ऊपर भी तो आ सकती थी, हाँ जी लेकिन मेरे ऊपर कोई चिंगारी नहीं आई, सिर्फ सूट सारा जल गया। बस वो ये सोच लो कि वो जो मेरे ऊपर विपदा आनी थी, मेरे ऊपर विपदा ना आकर उस सूट के ऊपर विपदा। और उस टाइम मन तो खराब होता ही है, आपको पता ही है कि जब मन खराब, भाई सूट जल जाए तो मन तो खराब होता है। लेकिन फिर बाद में जैसे आपने आपको रिलैक्स किया कि नहीं ये महाराज जी की कोई था, उन्होंने ही हमें बचाया है।
कि इस वजह से शायद कोई। ये 3 एक्सपीरियंस तो मैं कभी भी जिंदगी में भूल नहीं सकती। और चौथा एक्सपीरियंस तो अभी आपके सामने है। मैं एकदम से कहीं पर भी गिर जाती थी, कहीं पर भी गिर जाती थी। ये मतलब फिर डॉक्टर ने जो बताया, मतलब स्पाइन वाले डॉक्टर ने, कोई खराबी नहीं है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गैप नहीं आया, कोई ब्रीसिंग खत्म नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर हुआ क्या ये नहीं समझ आ रही थी, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। तो वो मतलब फिर मैंने महाराज जी से आशीर्वाद दिया। मैंने कहा महाराज जी मुझे सेवा के लिए वहीं खड़ा करो। कह रहे हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर, हो जाएगा, बस महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे। मैं ये बातें किसी से मैंने शेयर नहीं करी थी, लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मुझे शेयर करने का मौका मिला, तो मैं कर रही हूँ, वरना नहीं करी मैंने किसी से भी बात। ठीक है, अपने अपने मालिक की इतनी कृपा है तो अपने मालिक की कृपा बनाए रखे ना हम। हाँ जी। पहले तो बच्चे छोटे थे तो सेवा इतनी हो नहीं पाती थी, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चों के साथ फिर मैंने वो मेरे साथ सेवा करते थे। फिर उन्होंने, उनके मन में एक उमंग जागी कि हमें ना मम्मी यूनिफॉर्म डालनी है हमें। मैंने कहा ठीक है बेटा यूनिफॉर्म। फिर हम महाराज जी से मिले, मैंने कहा मेरे बच्चे दोनों यूनिफॉर्म डालना चाहते हैं और बच्चों के साथ फिर मैं भी यूनिफॉर्म डालना चाहती हूँ। तो हाँ जी, तो फिर क्या हुआ कि मेरे ना व्हाइट यूनिफॉर्म डालने का बड़ा मन था। तो फिर जैसे ही मैं महाराज जी के पास गई ना, तो महाराज जी कह रहे हैं बच्चे की चिट्टी वर्दी सिवा नाले अपनी भी सिवा जी, तो सेवा करो। ऐसे बोले, ऐसे ही एक्शन करके ना ऐसे ही बोले कि सेवा करो। फिर हम उसके बाद हमने कभी यूनिफॉर्म मतलब नहीं, हमने अब जब भी जाते हैं हम यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं दरबार। ते दास जी ਇਹ ਜੋ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ जो है आप जी ने की सीखा उन्होंने को? बस वही महाराज जी जो बताते हैं, आपस में प्यार करो, आपस में किसी का दिल नहीं दुखाओ और अपने आप को बदलो। जैसे गाली गलौज से, और पहली बात तो पहले भी नहीं करते थे गाली गलौज या कुछ भी है, या छोटे तब भाई जो छोटे लोग होते हैं जैसे भाई काम वाले भाई उनसे बुरा व्यवहार नहीं करना। मतलब कई बातें ऐसी होती हैं, पूरी बातें हम अपने कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम सीख रहे हैं भाई। फिर भी देखो हम इंसान हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई गलतियां हो ही जाती हैं, गलतियां तो हम करते ही हैं, ये तो है नहीं कि नहीं करते हम कभी। बिल्कुल। ते आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ देना चाहते हैं? बस बेनती यही है कि घूम फिर के कि हम आपस में प्यार बनाए रखें एक दूसरे को। मतलब कि कोई रास्ता अपना भटक गया है तो उसको रास्ता सही रास्ता दिखाएं, और अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर वो चल जाए तो हम इससे बड़ी और वो सेवा नहीं है हमारी, यही सेवा है। लेकिन कई मान जाते हैं, कई नहीं मानते, पर फिर भी कुछ तो असर होगा ही। हम सोचेंगे कि हम उनको समझाएं कि ये गलत है रास्ता, ऐसे मत करो, ऐसे वो करो। तो बाकी तो हमारे बस की तो नहीं है समझाना किसी को भी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, और किसी का भाई दिल ना दुखा पाए और वो ना कर पाए। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दास जी। आप जी आज साडे नाल कनेक्ट होने अपना कीमती समा कट के, ते गुरु महाराज जी आप जी और आप जी के परिवार ते इसी तरह रहमत किरपा करन। ते साध संगत जी, humble request, please like, share and subscribe to Guru Darshan Blessings YouTube channel। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਭਲਾ।